Hello, good morning, my dear little kids. How are you? I hope you all are very good, fit, and fine. Today we are going for English grammar subject. In this English grammar subject, today we are going to starting a new topic, and here the name of this topic is prepositions. Okay, so on your page number 22, assignment number 13, lesson number 13, the name is preposition. Okay, so what is preposition? First of all, what is preposition? Preposition is a word or a group of words which is used for noun. It is mainly used for noun that describe their position. For example, their position is on, their position is after, their position is behind, their position is at, or into, over, like, or between. Okay, so a preposition is a word or a group which used for a noun and pronoun for completing any sentences. Okay, so here first one is here, look at the picture and fill in the blanks. Here we have to concentrate here on this all the picture, and with the reference of this picture we have to fill up this all the fill in the blanks. So starting with the first one, so Mala is, so we all know that Mala is sitting after the Uma. So the first one answer is after. After means बाद में. Okay. Now second one, the teacher. So the teacher action is going on. मतलब वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है. और अगर कोई पर्सन, थिंग, प्लेस जो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तब हम वहाँ पे into का यूज करते हैं. अगर एक्शन हो रही होती है और बाहर से अंदर की तरफ आता है तो हम वहाँ पे into का यूज करते हैं. So here we are using into. The teacher is going into the classroom. Now third one, Mary is running. So Mary is running where? Mary is running behind Helen. Mary is running behind Helen. So behind means पीछे. Mary कहाँ भाग रही है? Helen के पीछे भाग रही है. Mary is running behind Helen. Now fourth one, the net is. So the net is here the talking between the two players. Here the sentence is talking between the two players. So when we talking about between the two players or between the two person, so at that place we are using between. जब हम दो पर्सन की बात करते हैं, दो प्लेस की बात करते हैं, दो थिंग्स की बात करते हैं या फिर किसी और दो चीज़ की बात करते हैं तो हम वहाँ पे between का यूज़ करते हैं. So the that is between the two players. Now fifth one, the horse is jumping. अगर कोई चीज़ हवा में होती है, वो लैंड के ऊपर प्लेस नहीं हो रही होती है तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं. सो हॉर्स कहाँ पे है? वो हवा में है. सो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. वो गेट के ऊपर से कूद रहा है. नाउ सिक्स्थ वन, द गर्ल्स आर सीटिंग. सो गर्ल्स हवा में नहीं है, वो तो सीटिंग है, सीटिंग ऑन अ बेंच. सो वो अगर हवा में नहीं है और किसी प्लेस के ऊपर बैठे हैं तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड ऑन इज ओनली दैट, अगर वो हवा में होते हैं तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे, बट अगर वो हवा में नहीं है, किसी लैंड के ऊपर प्लेस है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं. सो द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच. नाउ सेवंथ वन, शीला लुक्स. सो शीला लुक्स जस्ट लाइक हर मदर. वो अपने मम्मा की तरह दिखती है शीला. नाउ एट्थ वन, डॉक्टर ऑफन वर्क. ऑफन मीन्स अक्सर. डॉक्टर ऑफन वर्क एट नाइट. हियर दे टॉकिंग अबाउट प्रॉपर प्लेस एट हॉस्पिटल. सो हियर वी आर यूजिंग एट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 here, fill in the blanks with the right preposition. There is a given of two prepositions and we have to choose a correct one and write in the blanks. So the ceiling is, ceiling कहाँ पर होती है? वो तो हवा में होती है. So हम यहाँ पे over का यूज़ करेंगे. The ceiling over my head. Now second one, the rivers flow blank the bridge. मतलब ब्रिज के नीचे की तरफ से रिवर जा रही है और नीचे की तरफ जाती है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं. So the river flows under the bridge. I put my bag. I put my bag. अब देखो हम टेबल के ऊपर बैग रख रहे हैं. हम टेबल के ऊपर बैग, मतलब वो टेबल से टच तो होगा ना. अगर वो टच हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे. बट अगर बैग हवा में होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ कर रहे हैं. बट हमने रख दिया है बैग, अब वो टेबल से टच कर रहा है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं. आई पुट माई बैग ऑन द टेबल. नाउ फोर्थ वन, देयर इज सम मिल्क. सो देयर इज सम मिल्क. अब वो मिल्क पहले से जग के अंदर है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं. अब वहाँ पे इनटू का कब यूज़ करेंगे? जब हम मिल्क बाहर से अंदर की तरफ एक्शन के साथ डालते हैं तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ कर रहे होते हैं. जब एक्शन चल रही होती है तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं. बट पहले से यहाँ पे मिल्क जग के अंदर है तो यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे. देयर इज सम मिल्क इन द जग.
नाउ फिफ्थ वन, द बेबी थ्रू द टॉय। अब देखो ये कोई टॉय है जो बेबी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फेंक रहा है। कहाँ पे फेंक रहा है? वाटर के अंदर फेंक रहा है, तो यहाँ पे एक्शन हो रही है। सो हम यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे, द बेबी थ्रू द टॉय इनटू द वाटर। नाउ स्टार्स ट्विंकल, सो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। आई बॉट दिस कैमरा फॉर यू। द लैम्प हंग, अब जो ये लैम्प है वो किसके साथ हंग कर रहा है? सीलिंग के साथ, और सीलिंग के साथ वो हंग कर रहा है, हवा में नहीं है, सीलिंग के साथ है, तब हम वहाँ पे विथ का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नाइन्थ वन, ही ऑलवेज राइट्स विद दैट पेन, मतलब वो हमेशा उस पेन के साथ लिखता है। नाउ टेंथ वन, कल्याण इज, अब यहाँ पे दो प्लेस की बात हो रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया दो पर्सन, दो प्लेस और दो थिंग के बीच में बात होती है, तो हम वहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। तो कल्याण इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। Okay, so bye bye, take care.